Let us start with the plant physiology's most important part, that is glycolysis, that comes in the chapter respiration in plants. तो हम ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ही डिटेल में करेंगे कि व्हाट इज दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लाइकोलाइसिस. Glycolysis. The meaning of glyco is a sugar and lysis is a breakdown. So breakdown of sugar takes place. This cycle is also known as, इस साइकिल को EMP पाथवे भी कहा जाता है. EMP pathway. EMP is a Embden Meyerhof Paranas pathway. This pathway is a universal pathway. So universal pathway. Universal pathway, why we call it universal pathway? The first thing is it takes place in cytoplasm. पहला तो ये पार्ट है कि ये साइटोप्लाज्म में, it occurs in cytoplasm and it occurs in both aerobic and anaerobic organism. So that means it is universal because cytoplasm is present in all the organism, and aerobic and anaerobic both are that is it takes place in both aerobic and anaerobic organisms. So this glycolysis is we call it a partial breakdown. Partial breakdown हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ ग्लूकोज कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, रादर इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स. ये यहाँ ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज is converted into 2 pyruvate. So still energy is there in pyruvate. Hence we call it the partial breakdown. As it takes place in cytoplasm, so cytoplasm, whether it is a prokaryote or eukaryote, cytoplasm is present in every organism. Say it's a prokaryote. So prokaryote mein here this is the nuclear material. So it takes place in cytoplasm. The glucose is converted into pyruvate and pyruvate. Or if it is having the eukaryote, अगर हमारे पास ये यूकैरियोट सेल है, ये प्रोकैरियोट है, तो इसमें भी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल. सो इट इज टेकिंग प्लेस इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक anaerobic and anaerobic organisms. Hence it is said to be the universal pathway. This glycolysis has 2 phases. ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस हैं. एक में एटीपी यूज होती है और एक में एटीपी रिलीज होती है. एक में एटीपी यूज होती है, तो एक में जिसमें एटीपी यूज होती है उसको कहते हैं हम प्रेपरेटरी फेज. प्रेपरेटरी फेज. और दूसरे में जिसमें एटीपी
रिलीज होती है उसको कहते हैं पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस होते हैं, इन 10 में से 5 रिएक्शंस एट प्रेपरेटरी फेज में एंड 5 रिएक्शंस इन पे ऑफ फेज में। तो देर आर 2 phases इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। तो ये इसमें 2 phases में मैंने बताया आपको, वन इज द प्रेपरेटरी एंड अदर इज पे ऑफ फेज। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में। यहां देखिए ये ग्लूकोज है, glucose is changed into glucose 6-phosphate, then into fructose 6-phosphate, then into fructose 1,6 diphosphate. Then this will divide into 2 dihydroxyacetone phosphate and 3 phosphoglyceraldehyde. So these steps here once again, this is the first step, this is the second step, this is third step, this is fourth step, and here this is the fifth step. These 5 steps are what I told you, that is preparatory phase. Whereas now what happens to this 3-phosphoglyceraldehyde? Now we have 2 molecules. We have 2 molecules here of 3-PGL. के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं। These 2 molecules of 3-PGL, they are converted into 1,3-diphosphoglycerate, then it is converted into 3-phosphoglycerate, then it is isomerized into 2-phosphoglycerate, then it is converted into phosphoenol pyruvate, then ultimately it is converted into pyruvate. Pyruvate is the 3-carbon compound, there are 2 molecules. This right hand side phase is said to be payoff, and left hand wala it is preparatory. How it is? This is again there is this is step number 6, step number 7, step number 8, step number 9 and step number 10. So it is a 10th step. 10 5 इसमें 5 इसमें. Now see कौन कौन से स्टेजेज में एटीपी यूज होती है, पहले ये देखना हमने. सो फर्स्ट इज एटीपी इज यूज्ड हियर, सेकंड एटीपी इज यूज्ड हियर. सो जनरली कंपटीशन में पूछा जाता है कौन कौन से स्टेप पे फर्स्ट एंड थर्ड पे एटीपी यूज हुआ. वेयर एज एटीपी रिलीज कहाँ से हुआ, यहाँ देखिए स्टेप नंबर 7 एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू दिस एरो इज, ये एटीपी बनाने वाला है. एंड हियर ATP is converted into ATP, but here these are two molecules, so here we call it 2 ATP, here 2. so इन पहले वाले में that is preparatory में कितने ATP हमने यूज किए थे, 1 and 2. 2 ATP का लॉस हुआ था, -2 ATP लिख देते हैं यहाँ, और यहाँ 2 + 2 कितना हो गया 4 का हमें गेन हुआ. तो नेट गेन इज 2, 4 दिस -2 दिस. तो ग्लाइकोलाइसिस में जो हमें डायरेक्ट एटीपी बना, दो एटीपी का हमें प्रॉफिट हुआ, दैट इज 2 एटीपी. 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट किए थे. इन्वेस्ट किस में किए थे, जेब से हमने पैसा कहाँ लगाया था, प्रेपरेटरी फेज में. और पैसा मिला कहाँ, पे ऑफ में. पे ऑफ में कितना मिला, 2 रुपये लगाया था, हमें 4 रुपये मिला. 4 रुपये से -2 रुपये कर दिया, तो हमें जो नेट प्रॉफिट है वो 2 रुपये हुआ. भी फर्स्ट पार्ट पे हम इसको इतना समझेंगे दैट हाउ द ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो रही है. छोटे से पार्ट में आपको बताया, इसकी थोड़ी और डिटेल हम करेंगे कि ये जो स्टेप्स हमने किए इनको और डिटेल में हम बात करेंगे
कि हाउ दिस ये होता कैसे है। ये देखिए, ये सबसे पहले अब हम जाएंगे, जब इसकी बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये हमारे पास ये 6 कार्बन हमारे पास ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज ये इस टाइप से ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इस ग्लूकोज में व्हाट वी आर डूइंग, हम इस ग्लूकोज में फॉस्फेट देंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए क्या किया था हमने, ग्लूकोज को फॉस्फेट दिया था और बन गया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब पहले भी ये फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हम फॉस्फेट देंगे, तो फॉस्फेट नेचुरली दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो हम 6th कार्बन पे ग्लूकोज फॉस्फेट देंगे, तो वी आर एडिंग फॉस्फेट टू दिस। जब इस पे हम फॉस्फेट देंगे तो दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना हमारे पास, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारे पास, हमने इसको फॉस्फेट दे दिया तो यहाँ फॉस्फेट दे दिया H3PO4, यहाँ दे दिया 6th एंड पे लग गया फॉस्फेट। तो ये ग्लूकोज है चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ जुड़ गया। हमने इसको ब्रेक करना, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाएंगे, हमने एक और फॉस्फेट देना है। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है ये ऊपर, तो हमने इसको बदलना है। पहले इस कार्बोनाइल ग्रुप को, इस O को हमने बदलना है यहाँ। तो इस O को जब हम पहले से दूसरे प्लेस पे लाते हैं, एल्डिहाइड से कीटोन, एल्डिहाइड से कीटोन, ध्यान से देखिए, ये आ गया H3PO4, ये देखिए ये 6th एंड पे आया H3PO4। तो जब हमने इसको कार्बोनाइल यहाँ से यहाँ लाओगे इसको, तो नेचुरली यहाँ CH2OH आ जाएगा। तो जब ये कार्बोनाइल यहाँ से यहाँ लाए हम, तो ये कीटोज बन गया, कीटोज बन गया तो ये बन गया फ्रक्टोज। सो इट हैज़ बिकम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, टू ऑल ऑफ यू। यहाँ हमने देखिए ग्लूकोज को चेंज किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद इसको चेंज किया फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, यस, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे पास ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमारे पास ये जो फर्स्ट एंड है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ये सिक्स्थ था। अब हमारे पास पहला जो एंड है, पहला जो कार्बन है वो खाली हो गया, पहला कार्बन खाली हो गया। अब इस हम पहले कार्बन को क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, फिर थोड़ा सा, ये पहला जो कार्बन था ये हमारा खाली हो गया, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे 6th पे क्या था, 6th पे हमारे जुड़ गया था H3PO4, 6th पे ये था हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था। अब हमने यहाँ ये फ्रक्टोज बन गया है, कार्बोनाइल यहाँ आए तो फ्रक्टोज बन गया है। तो हमने H3PO4 यहाँ डाल दिया फर्स्ट पे। जब फर्स्ट पे डाला तो ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट पे डाला, ये 6th का, तो जब यहां डल गया फर्स्ट पे भी डल गया, 6th पे भी डल गया, तो ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम फिर से चलते हैं कि क्या था हमारे पास था ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बाद बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड को हम तोड़ देंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, एंजाइम तोड़ेंगे इनको। तो ये एंजाइम जब ब्रेक करेंगे, देखिए अब क्या होगा, ये एंजाइम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि ये कैसे ब्रेक करेंगे, ये इस कंपाउंड को ऐसे ब्रेक कर देंगे, 2 पार्ट में। 6 कार्बन कंपाउंड
2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन कंपाउंड में, 3 कार्बन। देखिए 6 कार्बन था, ग्लूकोज है चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है चेंज इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कैसे कैसे हुआ था ये कि हमने दो जगह पे हमने एटीपी दिया था, यहाँ एटीपी दिया था और ये एटीपी बन गया था, यहाँ आइसोमराइजेशन हुई और यहाँ एटीपी दिया था और यहाँ एडीपी हो गया, तो हमारे 2 का लॉस हुआ अभी तक, दो एटीपी हमने इन्वेस्ट किए हैं। अभी फायदा कितना होगा वो दूसरे पे करेंगे, पे ऑफ पे बात करेंगे। पहले ये देखो 2 बन गए हमारे, 1 कार्बन के 2 टूट गया, देखिए स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ ये स्प्लिटिंग हो गई। अब आपने ट्रायोज पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट में जब हमने किया था तो वहाँ ट्रायोज किए थे, तो ट्रायोज किए थे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, 2 ट्रायोज किए थे हमने। ये ग्लूकोज जब हमने बायोमॉलिक्यूल पढ़े थे वहाँ किए थे ट्रायोज। ट्रायोज की एग्जांपल थी, वन इज ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दो हमने किए थे, दो ट्रायोज किए थे। तो देखिए ये हेक्सोज कन्वर्ट हो गए, ये हेक्सोज कन्वर्ट हो गए इनटू ट्रायोज, ट्रायोज में कन्वर्ट हो गए, 2 ट्रायोज में, जो वही नाम ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी, उनके साथ हमने कुछ नहीं करना, उनके साथ हमने फॉस्फेट ज्वाइन कर देना है, क्योंकि वो ये फॉस्फेट यहाँ भी जुड़ गया और यहाँ भी जुड़ गया। तो जो ऊपर वाला बना, देखिए जो ऊपर वाला बना, इसको अब हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास ये H3PO4 था, यहाँ भी H3PO4 था, तो ये मैंने आपको दिखाया था कि ये बन गया एक ऊपर वाला और ये के नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला बना दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 कार्बन का कंपाउंड बना। और ये नीचे वाला जो बना, दिस इज फॉस्फो 3 ग्लिसरल्डिहाइड, और इसको 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड भी कहते हैं, 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड। ये 2 बन गए हमारे पास, 6 कार्बन कंपाउंड के टूट के ये 3 कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट हमारे यहां बन गए, किसमें, पहले वाले में, जिसको हम बोला प्रेपरेटरी फेज। तो इसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें बताया जाएगा आपको कि कैसे ये हमें पे ऑफ कैसे करते हैं। तो वो आप सेकंड जो वीडियो होगा उसमें आप देख सकेंगे।